पेनल्टीमेट में। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट शेल में नहीं, थर्ड लास्ट शेल में होता है, बिकॉज ऑफ दैट aufbau प्रिंसिपल का डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप दिस aufbau वाला कॉन्सेप्ट इज क्लियर। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में भी किया था इसको। एक्सक्यूज मी। यस सर। अच्छा, और वो चैप्टर में हो गया aufbau आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में? नो नो। कोई बात नहीं, जब होगा तब आप होशियारी मारना, ठीक है ना। अच्छा, सो look at this. This is the general outer shell configuration for my F block elements. What was the general configuration for S block elements, beta? One is two. Very good, very good. And NS 1 to 2, very good. What was for P block elements? NS2, N minus 1. 6. ना ना, P block elements NS2, NP 1 to 6 है ना? Yes. हाँ, और D block के लिए क्या था बेटा? N minus 1 D1. वेरी गुड, वेरी गुड। N minus 1 D 1 to 10 NS2 ऐसा था। ओके, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाज गोइंग इन द सेकेंड लास्ट शेल। अगर आप यहां देखोगे फॉर F ब्लॉक एलिमेंट्स, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द थर्ड लास्ट शेल। ठीक है, तो लास्ट शेल इज योर N, उसके अंदर का शेल which is your penultimate shell, which is your N minus 1 shell, and your anti-penultimate shell or pre-penultimate shell is your N minus 2 orbital, where your F electrons are entering. So when you look at the configuration of these elements, now this is going to be your general outer shell electronic configuration or valence configuration. इसको डिटेल में हम लोग 12th में देखेंगे, 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, जो पेनल्टीमेट शेल है मतलब N-1 है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन जा रहा है D0 to 1, बस मैक्स एक जाएगा तो जाएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन N-2। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द aufbau प्रिंसिपल, ठीक है ना? Yes. राइट, वी हैव डिस्कस दिस ना बच्चे। तो एज पर aufbau प्रिंसिपल ऐसे बढ़ता है। अभी वो जो 2-3 केसेस आपको आएंगे कॉन्फ़िगरेशन में इन 12th स्टैंडर्ड, जहां पे ना कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखेगा N-2 F7, N-1 D1 NS2 ऐसा दिखेगा आपको। वो जो रिमेंबर हमने डी ब्लॉक में एक्सेप्शन किया था, हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था दिस कॉन्सेप्ट। If a orbital is half filled or completely filled, it is more stable. मैंने आपको weighing scale का एग्जांपल दिया था। Yes. ठीक है ना? तो वैसा ही सेम रीजन की वजह से यहाँ पे there are going to be elements in which we will see difference between the expected and the observed electronic configuration. ठीक है, तो इसीलिए वो D0 to 1 मतलब D में 1 दिखेगा कहीं कहीं जगहों पे, just so that F is either half filled or completely filled, ऐसा। ठीक है, क्लियर? Yes. अच्छा, this is the anti-penultimate shell, penultimate shell, and the valence shell. So electrons are entering into your anti-penultimate shell. ठीक है, ये लिख लिया सबने? Can I go ahead? अच्छा, आए, wait for 2 minutes. अच्छा, I'll wait. Over. Done sir. Okay, okay, okay.
Okay, guys. So let's go ahead. Now these elements are also called as your inner transition elements. Any idea why they are called as inner transition elements? Any wild guess? No. No. डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे थे, ये पता है सब लोग को? Yes. हाँ? Yes. Yes. अच्छा, डी ब्लॉक को we call it inner transition elements. Now my F block elements are actually placed inside my D block elements. So D block elements are transition, F block elements are placed inside D block. That's why they are called as inner transition elements. Simple. Okay? Yes. Yes, sir. अच्छा, आ जाओ. दोनों सीरीज में 14 elements each. Both series will have 14 elements. The reason they are having 14 elements is Electrons are 14. electrons are 14. Okay, and okay, थोड़ा उसको और expand करो बेटा. Anything related to F block element? Anything related to F orbital? Number of elements in the F orbital is Elements or electrons beta? electrons. Electrons. The maximum number of electrons that can be accommodated in the F orbital is 14. 14. Right? So the maximum possible configuration for a F block element is can be F14. It can start from F1 and it will go up to F14. 14. Oh, na? Yes. Correct? Very good. Okay. 4F series is your lanthanoids and your 5F series is your actinoids. All metals with high melting and boiling points. Okay. Now transition elements का हमने एक property देखा था. They form colored salts. Similarly, my lanthanoids and actinoids, they also form colored compounds or colored salts. Again, the reason is same because they have incompletely filled F orbitals. है ना बेटा? F1 से शुरू होगा तो F14 तक जाएगा. F14 तक पहुंचते पहुंचते जो बीच वाले एलिमेंट्स है वो सबके पास तो इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स रहेगा ना. अभी इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एक्सचेंज होता रहता है. इलेक्ट्रॉन्स कीप जंपिंग विद इन इटसेल्फ. तो दैट इज कॉल्ड एज F to F ट्रांजिशन, जैसे D to D ट्रांजिशन हो रहा था. नाउ इन दिस F to F ट्रांजिशन एनर्जी इज रिलीज्ड. This released energy, it lies in the visible spectrum, and that is why we can see color. Visible spectrum बोले तो विबग्योर. तो जो energy release होता है वो the energy is having wavelength of विबग्योर, any one wavelength of विबग्योर. You know what is विबग्योर, right? Yes. Yes. Seven colors of इसी rainbow. very good बेटा, excellent. तो इसीलिए अपन को ये कंपाउंड्स का कलर दिखता है. इनका कलर क्यों दिखता है? What is the actual reason behind them showing colors? All these reasons in detail you're going to study in 12th standard. Okay. So as of now, just remember that both the D block elements and the F block elements, they show colored compounds. They have colored salts. You can ask me any question at any point of time. Don't feel shy. Now, like we discussed in D block element, like they have variable oxidation state. Variable oxidation state because they have क्या बोलते हैं unpaired electrons. याद आ रहा है? ये सब डिस्कस किया था ना D block में हमने. Unpaired electrons in completely filled d orbital. Yes. No. Yes. 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 Yeah, I think discuss किया था. Yes. Yes. अच्छा, अच्छा. So similarly, lanthanoids and actinoids also show variable oxidation state. When I say variable oxidation state, I mean
the element is showing more than one oxidation state. Now it is able to do so because it has more than one unpaired electrons. Okay, since it has more than one unpaired electrons, it can lose electrons in turns. एक इलेक्ट्रॉन लूज किया फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया. आयरन का पता है ना, F+1 +2 ऐसा होता है. कॉपर का +2 +3 होता है वैसा. ये बेटा, you are understanding this, right? Yes. 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 When I talk about oxidation state, lanthanoids, they show this oxidation state which is in front of you. ये फिर भी बहुत कम है. But as compared to lanthanoids, actinoids show larger scale of oxidation state. ये देखो, this way. So they have more variable oxidation state. That's why they have more complex chemistry. Okay. Now, Yes. thorium and uranium, these two elements are occurring naturally in nature में पाए जाते हैं. इनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स आपको दिखता है एक्टिनॉइड्स में, all man-made बेटा, all man-made elements and all are radioactive. I hope you understand what is the meaning of radioactive. Yes. 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 Radioactive elements are those elements with a heavy nucleus which constantly क्या बोलते release Radioactive. radio particles. Radio. वो radio particles को दूसरा क्या बोलते हैं अपन? Nuclear. Radiations. These Radiation. radiations are in the form of alpha, beta, and gamma. 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 And I guess you know what is the consequence of alpha, beta, and gamma, Yes. right? Yes. Yes. ये 10th में हुआ रहेगा शायद आपको. Yes. फिजिक्स में भी आएगा आपको 11th में. ये देखो, elements after uranium are called as trans-uranium elements. यूरेनियम के बाद रखे हुए elements, trans-uranium elements. मम्मी को फोन साइड में कर देता ना. Sorry guys, sorry for the disturbance. It's actually my mom is not well, so she's besides me only, and she has to rest. So I cannot ask her to go anywhere else. Now see, if you classify our periodic table into the basic properties, basic elements, metals, non-metals, and metalloids. तो ये जितना blue वाला दिख रहा है ये सब metals है. जितना मोरपीस कलर दिख रहा है वो नॉन मेटल्स है, और जितना ब्राउन कलर दिख रहा है वो Metalloids है. What is the basic difference between metals, non-metals, metalloids? You all know that, right? So Yes. Metalloids is as good as बीच का between metals and non-metals वैसा. ठीक है. अच्छा, just by looking at this, ज्यादा क्वांटिटी किसका दिख रहा है बेटा, metals का कि Metals. metals का? Metals. So what do you think, most of the elements are solids or gases? Solid. Very good, excellent, Solids. Solid. very good. तो ऐसा लॉजिक लगाने का बेटा. ठीक है, अपने सामने पीरियोडिक टेबल है. ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें मैंने रेशियो निकाला हुआ है. देखो कितना मेटल्स है, कितना नॉन मेटल्स और कितना मेटलॉइड्स है. अब मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स में से मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट्स मेटल्स दिख रहा है. मेटल्स दिख रहा है तो मेटल्स का जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है? दे आर जनरली सॉलिड, दे आर स्ट्रांग, दे आर टफ एंड दिस एंड दैट. सो यू कैन जनरलाइज द प्रॉपर्टी विद सम एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस समझते हो बेटा? Yes. 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 There are definitely going to be some exceptions. With those exceptions, there is क्या बोलते हैं, we can generalize the properties for them. But when you talk about non-metals, तो non-metals बहुत कम है. वो जो light blue color में अपने को दिख रहा है, ठीक है? तो these Yes. non-metals, though they are less, but they are very dominant in their property. They are very reactive in their property. ऑक्सीजन की बात ले लो, हाइड्रोजन्स की बात ले लो,
Then you talk about carbon. Carbon के ऊपर तो पूरा का पूरा एक chemistry बना हुआ है, organic chemistry, right? You know this, right? Yes. हाँ. Yes. So उसी हिसाब से now when I talk about metalloids, when I talk about which are the most important metalloids in the periodic table, आपके सामने है बेटा. Silicon, Very good. germanium. Silicon and germanium. Silicon and germanium are two very essential metalloids. Now, what is the importance of silicon and germanium? Silicon and germanium, they have brought about a revolution in the field of electronics. आप क्या बोलते हैं, जितने भी devices use करते हो ना बेटा, मोबाइल हो गया, फिर आपका लैपटॉप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी बात करो आप, ठीक है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग पोर्टल हो गए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलो ना, वो सबके जो पार्ट्स होते हैं दे आर मेड ऑफ दीज मेटलॉइड्स बेटा, ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के पार्ट्स होते हैं उसके अंदर. सो why are we doing this? Why are we making the parts with silicon and germanium and not with directly conducting strong metals? They are bad conductor of electricity. कौन आहे bad conductor of electricity? Metals get heated up quickly. Excellent, very good beta. One reason is metals, they get heated up very quickly. Oxidized. Metals also, are oxidized. very good, metals are oxidized, they get heated up very quickly, they are good conductors of electricity as compared to metals. Have low resistivity. They have low resistivity. All these properties are all accepted beta. Very good. Now because of all these properties, जो electrical parts होते हैं ना, वो directly metals के हम लोग नहीं बनाते हैं. Why? Because पता चला एकदम से मेरा डिवाइस हीट अप हो गया, एकदम से करंट पास होकर के बॉडी में से करंट चला गया. So in metalloid you can control the amount of current, you can control the conductivity, whereas metals के अंदर थोड़ा difficult हो जाता है. वहाँ पे अपने को insulators वगैरह भी डालने, you have to bring in insulators in the picture. I hope you are understanding this, huh, beta? Yes. Okay, so we are Yes. generally discussing these three things: metals, non-metals, and metalloids. आ जाओ, सारे के सारे metals. 78% of the periodic table is all your metals. ठीक है? They are solids. At room temperature, they are solids. Obviously, exceptions are there. Which is the exception? Mercury. Mercury, बेटा जिंदा हो जा, है ना? Mercury. So mercury is in the liquid state. Liquid state. Room temperature पे liquid होता है. कभी mercury देखा? mercury से खेले हो laboratory में? हाँ. वो ऐसा Yes. mercury गिराते ना तो उसका droplets हो जाता है. उसका गोल गोल droplets हो जाता है. वो mercury droplets क्यों बनाता है बेटा? small droplets क्यों बनाता है? मेटल है. कुछ भी मेटल है. मैंने जो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ा था ना, उसमें मैंने बताया था आपको इसका रीजन. जस्ट ट्राई टू रिकॉल थोड़ा सा. लिक्विड्स का वन ऑफ द स्पेशल प्रॉपर्टीज इज Critical temperature. नो, Viscosity. नहीं, वेरी क्लोज. ये बेटा सरफेस टेंशन. Surface tension beta. Liquids, because of the property of surface tension, they try to reduce the surface area because of the unbalanced forces. Remember? Yes. बाबा ये बताया था ना मैंने तुमको पहले लेक्चर में, पहले लेक्चर के लास्ट, पहले चैप्टर के लास्ट लेक्चर में, if you remember, लास्ट लेक्चर में ही हमने properties of liquid स्टार्ट किया था ना बेटा. Yes. हाँ, तो आप लोग को वेपर डेंसिटी याद रहा, आप लोग को विस्कोसिटी याद रहा, उसके बीच में जो ये सरफेस टेंशन था ये वाला भूल गए, कोई बात नहीं. और उसके अंदर भी एग्जांपल हमने देखा था मर्क्यूरी का, कि मर्क्यूरी फॉर्म्स ड्रॉपलेट्स व्हेन ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर. हम लोग स्कूल में ऐसे खेलते थे, उसको करते थे, उसके ड्रॉपलेट्स को ऐसे इकट्ठा करते, बड़ा मजा आता था. मर्क्यूरी में से उंगली डालते थे तो ऐसे फट के ऐसे सर्कल बनता था. फिर टीचर आकर के पीछे कमर पे मारती थी, बोलती थी कि क्या खेलने की चीज है क्या. फिर टीचर आती थी, हम लोग फिर से खेलने लगते थे. सो दैट इज ऑल नॉर्मल बेटा. Mercury is somewhat silvery liquid like this. Yes. These metals have high melting and boiling points. Okay, with the exception of gallium and cesium. Gallium and cesium are two metals. They have all the properties of metals except of your melting point and boiling point. ये बेटा they melt very easily. We can't. आ जाओ 303 Kelvin and इसका boiling point 302 Kelvin.
इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं डिग्री सेल्सियस में तो कितना हो जाएगा? क्विकली, साइंस स्टूडेंट शुड बी क्विक। 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री Can I say 30 degree is almost room temperature? Room temperature is Yes. 25 degree Celsius, but Yes. उसमें 5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाया तो रूम टेम्परेचर ही हो गया ना, है ना? Yes. हाँ हाँ वैसे Yes. हम लोग का रिजल्ट आया सब लोग का? नहीं नहीं No. नहीं आया उसका। अच्छा okay. मैं भी नहीं थी। नहीं वो कुछ नहीं, वो मैं तारक मेहता का एपिसोड देख रहा था तो वो गोगी बार का रिजल्ट आता है तो मुझे तुम लोग का याद आया, तुम लोग का रिजल्ट पता नहीं कब आया। Metals are good conductors of heat and electricity, right? Metals are malleable. Yes. Malleable मतलब they Yes. can be flattened into sheets. yes Ten sheets. Yes. yes तो हाँ भाई हाँ, हर बात में yes. Metals are ductile. They can be Yes. converted into wires. Wire. Yes. yes अच्छा. Now let us look at the non-metals. Right side of the periodic table अपना non-metals आ गया. Non-metals are generally solids or gases. Or in the gases, solids अगर मैं बात करूँ तो कार्बन हो गया, बोरॉन हो गया, है ना? तो ये थोड़े solids हैं. Now, boron and carbon, they have high melting points. Generally, all other have low melting points. सर कोई बुला रहा है Hello? हेलो सर। हाँ बेटा बोलो. सर बोरॉन मेटलॉइड है कि नॉन मेटल है? नहीं, बोरॉन is going to be a non-metal बेटा, not a metalloid. Metalloid जो मैंने बताया था ना आपको, जो हाईलाइट किया था स्टार्टिंग में टेबल में. नहीं सर, हम लोग ना गूगल में सब सर्च करते हैं तो उसमें बीच बीच में आता है कि बोरॉन मेटलॉइड है। नहीं बेटा, गूगल का नहीं सुनने का, गूगल हर बार सही नहीं बोलता. ओके ओके बेटा, आई मीन लाइक आई रिस्पेक्ट गूगल, बट बहुत सारा इंफॉर्मेशन गूगल पे गलत होता है. Yes. Boron is a chemical element with symbol B. Yes. Produced entirely by cosmic lower abundance of no. Don't consider it as a metalloid, beta. Please consider it as a non-metal. non-metal Okay? These are boron and carbon are two non-metals with an exception of high melting melting point. point 2300 degree Celsius is very 3930 degree Celsius is for carbon. The only non-metal which exists in the liquid state at room temperature. Bromine. Chalo, very good. Thank God. bromine It's bromine, correct. Because sometimes you know what happens is you guys are so excited about writing this answer कि तुम लोग आँख बंद करके mercury लिख देते हो. Because हमने वही सीखा है कि which is the only metal which is in liquid state, mercury. तो जहाँ liquid state, room temperature, only ये तीन शब्द सुने you get triggered. You are not bothered to listen the entire question and you jump to mercury. So it is not. Non-metals are poor conductors of heat and electricity. Okay. Solid non-metals are brittle, non-malleable and non-ductile. ऐसा उसको शीट देगा ना तो वो टूट जाएगा बेटा. वो बहुत ब्रिटल होता है. उसको ट्यूब में कन्वर्ट करने जाएगा तो भी वो टूट जाएगा. Now, ये orange, these are your metalloids. ठीक है बच्चे? yes Yes. 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 हाँ. Okay. अच्छा. Now let us see the trends in the properties. What are the trends in the properties? Now in the periodic table, I'm moving from left to right. Left to right. मेरा left to मेरा right. Your left to your right. आपके लेफ्ट में क्या है बेटा? मेटल्स है. और Metals. राइट में क्या दिख रहा है? नॉन मेटल. Non-metals. So by looking at this trend, what do we conclude? That in the periodic table, when we are moving from left to right, the metallic character decreases and the non-metallic increases. आ जाओ. ये देखो.
these elements are exhibiting properties of both metals and non-metals. अपन इनको semi metals या metalloids बोलते हैं इनको. ये डायग्राम याद है आपको 10th में आया था टेक्स्ट बुक में? Yes. Yes. ठीक है. So what does this mean? This means in the periodic table, if I move from the bottom right corner to the bottom left corner to the top right corner, the non-metallic character will increase, and if I move in the opposite direction, obviously metallic character will increase. अब तुम लोग को समझ रहे हैं हम लोग क्या मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोल रहे हैं? तो अगर मैं क्या बोलते हैं फ्रांसीसियम लूं, अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के थ्रू पास हूं, दे आर ऑल मेटल्स, पर जैसे जैसे मैं और ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मेरे को नॉन मेटल्स आएगा. बट अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में गया फ्रॉम हीलियम, फ्लोरीन, राइट, सल्फर, तो ये सब तो नॉन मेटल्स है, पर जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आऊंगा ये सारे मेटल्स हो जाने हैं. ठीक है. नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिमेंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने डिस्कस किया था. Yes. हाँ, Yes. Yes. वेरी गुड. एक मिनट, सॉरी मैंने. So electronegativity is nothing but it is the, किसी का माइक ऑन है बेटा, प्लीज माइक बंद कर दो ना, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है मुझे. सब लोग अपना माइक्स बंद कर दो, जब मैं बोलूंगा तभी बोलना, वरना मत बोलना. वेरी गुड. नाउ नो डिस्टरबेंस. सो अरे यार मैं भूल गया. हाँ, electronegativity is nothing but the ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself within a covalent compound. मतलब अगर मेरा एलिमेंट ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है और वो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है. अभी इलेक्ट्रॉन शेयर होने का दो तरीका है, इक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग. अगर दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में शेयरिंग हुआ है तो इक्वल शेयरिंग होगा. दो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम का मॉलिक्यूल बना Cl2. These two atoms are forming covalent bond, sharing one electron each and completing each other's octet and forming a bond. अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, दोनों क्लोरीन एटम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0. दैट इज व्हाई जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो शेयर हुआ है वो शिफ्ट नहीं होगा इधर उधर, वो बरोबर बीच में रहेगा. बट अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन क्लोराइड की, अगर मैं बात करूं H2O की, तो ये एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है, ये एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है वो अनइवन रहेगा. अनइवन क्यों रहेगा? एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, एज कंपेयर टू क्लोरीन, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. The other elements are more electronegative. They are more electronegative बोले तो they will attract the shared pair of electron towards themselves. They will not completely take it away, but they will not allow to be it at the center. If you remember that example, बड़ा बेटा छोटा बेटा, sharing of burger, दोनों को भूख लगा है, but भूख जिसको ज्यादा लगा है वो ज्यादा पार्ट लेगा और भूख जिसको कम लगा है वो छोटे पार्ट से भी satisfied रहेगा. At the end, दोनों का hunger is satisfied and both are sharing the burger. है ना बेटा? अच्छा. So electronegativity increases from left to right. It increases from left to right in the periodic table. Simple सी बात है भाई. Metals electropositive होते हैं, non-metals electronegative होते हैं. जब when I am moving from left to right, the non-metallic character is increasing. Therefore, electronegativity will also increase. एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की बात अगर हम करें, एटॉमिक रेडियस इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नथिंग बट इट इज द energy required to remove the most loosely bonded electron from the outermost shell of an atom.
if I am not wrong, I think we did discuss about ionization enthalpy or ionization energy in the last lectures. Yes. मैंने आपको बताया था कि एक Yes, एटम yes. को उसको आयन कन्वर्ट करने, क्या बोला मैंने, उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए अपने को उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा. उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए मेरे को कितना क्या एनर्जी लग रहा, दैट इज योर आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी. ये तीनों में से कोई भी वर्ड आएगा बेटा, तीनों का मतलब एक ही है. आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल. पोटेंशियल बोलो, एंथैल्पी बोलो या एनर्जी बोलो, एक ही बात है. तो कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ठीक है. अगर एटम का साइज बढ़ा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंथैल्पी कम रहेगा, बिकॉज साइज बड़ा मतलब मेरा जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है. न्यूक्लियस से दूर है मतलब न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन उसकी तरफ लेस है, तो मैं उसको इजीली निकाल सकता हूँ. पर अगर एटॉमिक साइज छोटा है तो मैं उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं निकाल सकता. काय को न्यूक्लियर चार्ज इज हैविंग मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट इलेक्ट्रॉन. रिमेंबर ये डिस्कस किया है हमने. Yes. मला आठवतंय की सगळं Yes. बाउन्सर जातोय. आठवतंय. वेरी गुड. आज बजे तक ये ना 6 बजे तक ये ना लेक्चर आज. Yes. 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 Oh, look at the happiness in your yes. Okay. अच्छा, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होता है. So let us discuss these properties in depth. Periodic trends in chemical reactivity. Chemical reactivity. What is chemical reactivity, beta? When No Chemical specific definition. I want a general definition. when two compound break down Okay. to form another bond. Good. Very good. That is chemical reactivity. Yes. Very. Are there new students in today's lecture? Yes. You are only the new Yes. student. तुम्हारी Yes. बस पहली बार सुनी है. Where are my oldies? My old students. Where is क्या बोलते हैं रोहित? Where is Sai? Where is अपना Yashwant and Kedar and others? We all are there na in the lecture? Yes. Yes. Okay. Hey. अभी देखो. Let us have a look at atomic radius. Atomic radius across the period it increases or decreases बेटा. अभी सामने दिख रहा है decreases, तो obviously decrease है. But ये हमने discuss किया था last lectures में कि ये decrease क्यों होता है ना? Because electron is being added in the same shell. So across the period, nuclear charge is also increasing. Since nuclear charge is increasing, the nucleus keeps attracting the last shell electrons towards itself, because of which the size keeps on contracting. ये बहुत इंग्लिश बोला क्या बेटा मैं? समझ में आ गया ना? No, understood. Very good. ठीक है. So this is the reason why the ionization enthalpy, the energy required to remove the electron from the outermost shell, increases when you move from left to right of the periodic table. You don't have to remember the values of ionization enthalpy or these graphs. They are just for your understanding. तो ऐसा ग्राफ्स और वैल्यूज देख के डरना मत हा बेटा. ये वैल्यूज आपको बाय हार्ट नहीं रखनी है. आपको सिर्फ ट्रेंड्स, आपको सिर्फ लॉजिक, आपको सिर्फ रीजंस याद रहना चाहिए. और अगर आप वो रीजन समझ गए, अगर आप लॉजिक अप्लाई कर पाओगे, तो आपको याद रखने का भी जरूरत नहीं है. आप एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कनेक्ट करके ऑटोमेटिकली अपना आंसर बना सकते हो. सो द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी to understand things. Once you understand things, you will automatically relate and remember them. Now, electron gain enthalpies.
electron gain enthalpies are becoming more negative across the period. What does this mean? जब मैं I'm moving from left to right, what is electron gain enthalpy बेटा? The energy required to add a electron in the last shell of an electron, right? हमने बताया Yes. आयनाइजेशन पोटेंशियल का टोटल ऑपोजिट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आयनाइजेशन पोटेंशियल में मैं पॉजिटिव आयन बना रहा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मैं नेगेटिव आयन बना रहा. ठीक है, समझ रहे हो बेटा? अभी जो एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो रेडिली एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को. यस है ना बेटा? जिसको तो जो एलिमेंट्स हैं जिनके लास्ट शेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को रेडिली एक्सेप्ट करता है. इलेक्ट्रॉन्स को रेडिली एक्सेप्ट कर रहा है मतलब मैं अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो मुझे ज्यादा एनर्जी का जरूरत नहीं होगा, है ना? यस. अच्छा, so look at these values of electron gain enthalpies, kilojoules per mole. When you move across the periodic table, the value becomes more negative and negative. More negative means more, मतलब उतना less energy मुझे चाहिए. Less energy चाहिए मतलब मैं इलेक्ट्रॉन को easily add कर सकता हूँ. But अगर मैं स्टार्टिंग के एलिमेंट्स की बात करूं, एलिमेंट्स विच आर देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो एलिमेंट्स के अंदर ना बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होता है. क्यों? बिकॉज उनके लास्ट शेल में 2, 3, 1 ऐसा इलेक्ट्रॉन रहता है. तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने का ट्राई करेगा. ठीक है ना? तो अगर आप उसके अंदर तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम रहेगा, बट उसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई रहेगा. Did you understand or did I confuse you? जिसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं रिपीट करता हूँ. जिसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है. Yes. तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल लो रहेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, राइट? अब उसके सेल में, जिसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने का है. ऐसे इलेक्ट्रॉन को आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट को आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो वो इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा बट बहुत एनर्जी लगेगा जबरदस्ती उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, बिकॉज उसका टेंडेंसी इज टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नाउ यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन. तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका हाई हो जाएगा. अभी समझा थोड़ा सा? Yes. अब अगर मैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन की बात करूं, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लूज नहीं करते हैं, राइट? तो अगर इनको इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो और मैं उसको वही दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा है मैं उसको, और उसको इलेक्ट्रॉन गेनिज करने का है, तो ऐसे में उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी कम लगेगा? ऑब्वियसली कम लगेगा, राइट? बिकॉज उसके मन का हो रहा है इसलिए, राइट? अगर तुमको टिंडे की सब्जी खिलानी है तो तुम उसको ज्यादा रेजिस्ट करोगे, तो मम्मी को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, झाड़ू, चप्पल, बेल्ट, पता नहीं क्या क्या यूज करना पड़ता है. बट वहीं अगर आपको गाजर का हलवा खिलाना है तो मम्मी सिर्फ सामने प्लेट पे रख देगी और तुम फटाफट खा जाओगे, तो उसमें कम एनर्जी लगती है, राइट? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द एनालॉजी, द कंपैरिजन ओवर हियर. द एलिमेंट का जो स्वभाव है, जो उसका केमिकल नेचर है, अगर आप उसके हिसाब से काम करोगे तो एनर्जी कम लगेगा, बट अगर आप उसके अगेंस्ट काम करोगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगा. तो इसीलिए फ्लोरीन के अंदर में से, लास्ट सेल में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वो बोलेगा अरे भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन लेने का आदत है, देने का आदत नहीं है, तो इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेरे को ज्यादा एनर्जी लगेगा, बट उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए मेरे को एनर्जी कम लगेगा. एक कड़ लगा रे बड़ा नो. Yes. Did you understand the concept? Yes, Concept is important, understanding is important. Very good. The smart students in this class. So, lowest ionization enthalpy किसका रहेगा? Alkali metals का. और highest ionization enthalpy किसका रहेगा बेटा? Halogens. And most negative electron gain enthalpy is for halogens. ठीक है? Halogens बोल रहे कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन निकालो मत, मेरे को इलेक्ट्रॉन दो. That way. Now,
See, low enthalpy means they are willing to give away the one electron. ये देखो सोडियम मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में आराम से लूज करेगा मतलब कम एनर्जी लगेगी. So यहाँ पे easily accept electrons. बेटा halogens they are accepting electrons. If they are accepting electrons, they are क्या बोलते हैं reducing agents or oxidizing agents. Oxidizing. Excellent. अरे वाह मेरा दिल जीत लिया. Why are they oxidizing agents बेटा? Accepting electrons. Electrons gaining. Electrons. They are itself वो खुद रिड्यूस होकर के दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे मतलब खुद का रिडक्शन कर रहे और दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले रहे. दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा मतलब उसका क्या हो रहा बेटा? उसका ऑक्सीडेशन हो रहा. ये ऑक्सीडेशन ये एलिमेंट करा रहा तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले रहा. ठीक है ना? वेरी गुड बेटा. आई एम हैप्पी दैट यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. वेरी गुड. ये देखो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. ये देखो हाइड्रोजन फॉर्म आयनिक बॉन्डिंग जब बनाएगा ऐसा और कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनाएगा तभी ऐसा. आपको क्या लगता है इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? Ionic bond. Everybody very sure about this? Yes, sir. Yes. Ionic bond is because of electrostatic force of attraction between sodium ion and fluoride ion. Fluoride ion. Whereas covalent bonding in HCl is because of the sharing of electrons and actual overlapping of orbitals. Right? हाइड्रोजन का ऑर्बिट और क्लोरीन का ऑर्बिट ओवरलैप करेगा और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे का शेयर करेगा ना. Yes. तो डोंट यू थिंक just being in contact and overlapping is इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा? Contact वाला. Being in contact. आपने ना आपका हाथ दूसरे के हाथ के साथ सिर्फ टच किया है और दूसरे ने ना मतलब एक एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल क्या है? एक बंदे ने दूसरे बंदे का हाथ पकड़ा हुआ है तो किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? हाथ पकड़ा हुआ स्ट्रॉन्ग रहेगा. पकड़ा हुआ सीन किसमें है बेटा? हाइड्रोजन कोवैलेंट में है या आयनिक में है? बड़ा भाई कोवैलेंट में हो गया ना. कोवैलेंट ओवरलैपिंग है ना. आयनिक में. देखो हमारा नोबल गैस एटम अभी इसको ना इलेक्ट्रॉन लेना है इसको ना इलेक्ट्रॉन देना है. ये मोह माया से परे है बेटा. जो मेरा इनर्ट एलिमेंट्स होता है वो ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा. क्यों ऐसा? वाई ऐसा क्यों करेगा वो? Stable electronic configuration. वेरी गुड. बिकॉज इट हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट है ना. Yes. Yes. अच्छा ठीक है. लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स आर योर नोबल एलिमेंट्स. अभी chemical reactivity is highest in the periodic table for two groups, alkali metals and halogens. Can anybody guess what is the reason behind this? कि highest chemical reactivity is observed in alkali metals and halogens. दोनों periodic table के एकदम opposite ends पे. बेटा किसी का माइक ऑन है? मेरे को ऐसा आवाज आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है. तो highest chemical reactivity first group का है और 17th group का है. दोनों का केमिकल क्या बोलते कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट. स्टिल देयर रिएक्टिविटी इज हाईएस्ट. द रीजन इज अगर मैं अल्कली मेटल्स की बात करूं तो उनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. इट इज वेरी इजी टू लूज दैट वन इलेक्ट्रॉन एंड अटेन स्टेबिलिटी. एंड इफ आई टॉक अबाउट हैलोजेंस उनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन. इट इज वेरी इजी टू गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड अटेन स्टेबिलिटी. अभी नेचर क्या बोलता कि जितना जल्दी स्टेबल हो जाता है हो जा बेटा ऐसा. ठीक है. अभी सबसे जल्दी स्टेबल कौन हो सकता है? मेरा अल्कली मेटल्स और मेरा
क्या बोलते हैं दोगे? Halogen. हैलोजन। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का इनको जरूरत होता है, एक को देना है, एक को लेना है। लेना है। ये बाकी जो एलिमेंट्स है ना बीच में, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को शेयर करना है, किसी को लूज करना है, तो वो लोग का बहुत नाटक है। नहीं भाई मैं पहला एक देगा, फिर दूसरा देगा, फिर तीसरा देगा। नहीं भाई पहला मैं एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरा बॉन्ड बनाएगा, तीसरा बॉन्ड बनाएगा। इनका सिंपल रूल है भाई, एक ले एक दे, खत्म, और स्टेबल हो जा। तो इसीलिए दे रिएक्ट वेरी इजीली। एक तो फटक से एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिल जाएगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देंगे और अपन ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, स्टेबल हो जाएगा वैसा। ठीक है। नाउ योर अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में बात करूं तो alkali metals में reactivity is highest because of the lowest ionization enthalpy value। ये बहुत इंग्लिश है ये। lowest ionization enthalpy value वही है बेटा जो मैंने आपको अभी नॉर्मल लैंग्वेज में समझाया ना, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है? बिकॉज उसको एनर्जी कम लगता है। वो एनर्जी क्या है जो कम लगती है? आयनाइजेशन। So that is why if you put it in English words, it's going to be like this: that alkali metals are highly reactive because of the low ionization enthalpy values। ऐसा इंग्लिश में बोलने का, पर जो मैंने आपको समझाया, that is the reason behind it, that is the explanation for that। Okay, आ जाओ ऐसा। But the maximum chemical reactivity at the extreme right in halogens, it's because of this electron gain enthalpies। Now these electron gain enthalpies again are low। आराम से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसमें। तो these anions, alkali metals and halogens का anions और cations की अगर मैं बात करूं, positive ions और negative ions की मैं बात करूं, so what can I say about the ions of alkali metals? They are oxidizing agent or reducing agent? Reducing agent. Good, they are reducing agent। क्यों? अरे बिकॉज वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब उसको रिड्यूस कर रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज वो खुद रिड्यूस होकर के दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज बोले तो उसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है। अब बेटा ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, ये बहुत जनरल, बहुत छोटी सी बात है जो आप समझ भी गए रहेंगे। बट यू नो डाउन द लाइन व्हेन यू स्टडी डीप इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, और जब एंट्रेंस एग्जाम्स आएगा आपके सामने, तभी आपको पता चलेगा कि ये कुछ तो पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन आएगा व्हिच ऑफ दिस इज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हिच ऑफ दिस इज अ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, तभी आप कंफ्यूज हो जाते हो। तभी ना बेटा ये बेसिक याद रखना, ये जो हमने पीरियोडिक टेबल में बेसिक्स सीखा है ना, बेसिक केमिकल ट्रेंड्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, तब ये बातें आपको काम आएंगी, याद आएंगी। तो इसलिए ये बेसिक जो प्रॉपर्टीज हम सीख रहे हैं बेटा, ये अपने को हमेशा याद रखनी है। ओके, If I talk about chemical reactivity of any element, अगर मैं किसी और एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो उसकी रिएक्टिविटी हम लोग बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं आइदर विद हैलोजेंस और विद एल्कलीज, बिकॉज दीज टू ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर मोस्ट रिएक्टिव। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट्स है, इनके साथ अगर मैं दूसरे एलिमेंट्स का रिएक्शन लिखूं, तो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ रिएक्टिव द अदर एलिमेंट इज, कितना इजीली वो इनके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है ना? यस सर। Halogens and oxygen combination is more easier as compared to the elements in the center। तो मेरा जो alkali metals है, मेरा जो halogens है, ये ऑक्सीजन के साथ ज्यादा इजीली कंबाइन कर सकते हैं एज कंपेयर टू दीज एलिमेंट। ये बेटा इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग नहीं करेगा, और ये लोग भी करेगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट which one of them is going to do faster and which one is going to do slower। ऐसा। ये कोई तो नाक साफ कर रहा है। ए प्लीज माइक बंद करो।
ठीक है. Now the oxides which are formed by alkali metals, they will form basic oxides. Oxide बोले तो it's combination with oxygen, simple as that. Lithium oxide, sodium oxide, potassium oxide, rubidium oxide, cesium oxide, francisium oxide. ठीक है बेटा. Oxide बोले तो even your water is an oxide, you know this, right? Yes. Yes. अच्छा. अच्छा. So these elements, मेरा जो elements है of alkali metals, they form basic oxides. What do I mean by basic oxides? Simple. कुछ भी. Simple बोलते हैं. Basic मतलब simple. Which? 7 to 14 के अंदर. वाह वाह वाह. pH आ गया. पेपर बता रहे. बेसिक ऑक्साइड्स मतलब ये ऑक्साइड्स को अगर मैं पानी में डिसॉल्व करेगा, ठीक है, दे आर वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड्स, सिंपल एज दैट, एंड देयर पीएच इज बेसिक. बेसिक बोले तो लाइंग इन द रेंज ऑफ 7 to 14 एज समवन राइटली सेड इट. ओके. Yes. ओके. तो एक्सट्रीम राइट वाला इसका क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रोजन वाला कौन क्या बनेगा? उसका ऑपोजिट, एसिडिक ऑक्साइड्स. ये बेटा समझ रहे क्या? Yes. हाँ सर. अच्छा अच्छा अच्छा. तुमको लुईस Yes. एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट पता है? क्या? LEWIS, लुईस, पता है इसका No. कॉन्सेप्ट? No. No. कोई बात पढ़ेंगे 11th में पढ़ेंगे हम अच्छे से, ठीक है ना? अगर ओके ठीक. ओके म्यूट एवरीवन, म्यूट. म्यूट डार्लिंग, म्यूट. Okay. Now let us see this reaction of sodium. ये देखो. This is the meaning of your basic oxide. Sodium, when reacts with oxygen, it forms sodium oxide. This sodium oxide, when reacted with water, is going to form a strong base, which is sodium hydroxide. ये लिखा बेटा एग्जाम्पल? Yes. Yes. इधर लिख लो. हाँ बेटे, तुम लोग को बाद में समझने के लिए काम आएगा. They form basic oxides. Basic oxide बोले करके मेरे को strong base दिया. अभी in contrast, let's look chlorine का reaction with oxygen. On reaction with oxygen, it forms chlorine oxide, which is highly acidic. This is highly acidic. ये लिख लिया? Yes. Done. अच्छा, ओके. This heptaoxide, when reacts with water, strong acid, which is your perchloric acid, HClO4. अभी से इनका टेंशन मत लो, ये सब धीरे धीरे अपने को आएंगे, ठीक है? लिख लिया बेटा? Yes. Yes. Okay. Elements in the center which are reacting with oxygen, they'll be either amphoteric like aluminium oxide. ये पढ़ा रहेगा था 10th में भी. Yes. Aluminium forms. Yes. 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 ठीक है? Yes. Or they can be neutral like carbon
मोनोऑक्साइड। ये देखो, what is amphoteric beta? Amphoteric compound is that compound which reacts with both acid and base. With a strong acid, it behaves like a base, and with a strong base, it behaves like an acid. Okay? Yes. अच्छा, ये example लिख लेना सभी। No. Why no? लिख लो ना बेटा प्लीज। Yes. Sir, Al2O3 rust है ना? Al2O3 रस्ट नहीं है बेटा, वो तो अपना Fe2O3 है। सर Al2O3 में भी कुछ तो होता है, वो एल्यूमिनियम को बाहर निकालते समय एल्यूमिनियम पे जो रस्ट Al3 Are होती you है। are you talking about purification of aluminium? वो extraction of aluminium Yes. की बात कर रहे हो? रस्ट की अगर मैं बात करूं, रस्ट इज ऑन आयरन स्पेसिफिकली, दैट इज योर Fe2O3 बेटा। Al2O3 is actually an ore of aluminium. Bauxite पता है? Yes. वहाँ पे आपने सुना रहेगा, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। Done sir. ओके, गाना नहीं गाना है। Now, when I talk about neutral oxides, they are neither acidic nor basic. उनका pH पानी जैसा होता है, 7. Example, carbon monoxide. ठीक है, ये देखो। Now, when I'm moving in the periodic table from left to right, this is how the oxides are behaving. First, they are strongly basic, then weakly basic, then amphoteric, weakly acidic, and in the end, strongly acidic. ये प्लीज ट्रेंड याद रखना, ताकि अगर हमको क्लासिफिकेशन के लिए आए आगे जाके इन 11th 12th एंड एंट्रेंस, तब ये हम लोग को लॉजिक अप्लाई करने में काम आएगा। क्लियर? Yes. Done, sir. Okay. Now, atomic और ionic radius की अगर मैं बात करूं, it increases down the group. So, ionization energy will also decrease. Ionization enthalpy will also decrease, and gain electron gain enthalpy, it also decreases down the group. Metallic character also decreases down the group. Chemical reactivity, it increases down the group for my alkali and alkaline earth metals. But if I talk about if I talk about halogens, it increases. Beta, please अपना mic बंद रखो. I can hear voices. Do you have another lecture after this? No. Okay. ठीक है. So what we'll do is let us stop over here. ठीक है. We'll continue with the properties Okay. and the trends in the next lecture. I hope जितना हमने आज discuss किया तुमको थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा. Yes. Yes. माधुरी मैडम. माधुरी मैडम. हाँ सर बोलिए। And good evening.